Very good morning to all of you. This is Narendra Kumar from Loyal Public Schools, and now we are going to start about the physics of 10th class. In last few days, we have completed so many topics related to the 10th class physics first chapter, which is electricity. So I am going to revise about the topics, and first of all about the electricity I would like to revise you. Then you can say that the electricity is a form of energy which can be explained by the help of an electrical current. So electrical current I is known as the Q upon P. It is the electrical current. SI unit for this all of you know, which is ampere. There is the Q which is known as the charge, which is also a physical quantity. After that, V is equal to, you can say that electrical potential. Then further we have already discussed about the circuit, and there are two types of electrical circuit, open and closed. So on the behalf of, you can say that the presence of plug key in electrical circuit, we have decided and we have discussed about the types of electrical circuit. After that, we have discussed about some electrical appliances symbol, in which you have discussed about the symbol of battery, resistors, and there are so many things which denoted by the special symbols, like this is denoted by the resistor, and this is denoted by the rheostat, and you can say this is denoted to battery, and this is denoted to electrical bulb. So these are the symbols which is used to denote the particular electrical appliances. After that, we have studied about the Ohm's law. So which is the relation between, you can say that, electrical current and electrical potential, and which can be denoted by I proportional to V or V proportional to I. This is the relation between the electrical current and electrical potential, and this relation explained by the, you can say that, Ohm, who was the physician. Okay, so in this relation you can see that if you reduce the sign of proportionality into the equal, then you can say that it will be reduced by the constant R, and R is used for the resistance of electrical current. Now R can be explained by this symbol. Okay, it is known as the Ohm, and the value of R always remains constant. हमेशा जो है वो R constant होता है, क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके इक्वल का साइन अगर लगाया जाता है तो वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो R है वो एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, और R का जो सिंबल होता है वो होता है ये ओम। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इस R यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। So there are two things on which the resistance of the wire depends. First is the length of the wire, okay, and second is the cross section area of the wire. तो यहां से आप ये देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया और रेसिस्टिविटी जो है उसमें क्या संबंध होता है। तो अपन सबसे पहले बात करें कि R जो है रेजिस्टेंस वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L के। लेंथ ऑफ द वायर जितनी ज्यादा होगी उतना इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देन R proportional to L upon A. So by this you can judge that रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है उसको इक्वल से रिड्यूस करते हो, यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हमने रिड्यूस किया बाय इक्वल साइन,
Okay, it is used to denote the resistivity of conductor wire. तो ये जो रो होता है ये हमेशा रेसिस्टिविटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अब रेसिस्टिविटी होती क्या है? तो रेसिस्टिविटी यू कैन से दैट प्रॉपर्टी, मतलब रजिस्टर जो होता है वो एक कंडक्टर वायर होता है, लेकिन जब भी उसमें से करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, उसको अपोज करता है, क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के अंदर क्या चीज होती है, रेसिस्टिविटी, जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ गए? यानी कि हम यहां से अगर वहां तक जाते हैं तो रास्ते के अंदर जितनी भी बाधाएं आती है वो सारी क्या कहलाएगी, रेसिस्टिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। ओके, so we have already discussed about that. Now if you want to calculate the resistivity value, then this A will be here divided, then it will go into the multiply R into A. Okay, and this L will be going to the denominator, then you can say that this will be the formula for resistivity. यानी कि अगर आपको कभी भी रेसिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप R रो इक्वल टू R into A upon L से कर सकते हैं। ओके, फर्दर अगर आप इसकी ऐसा यूनिट की बात करो, देन R जो है रेजिस्टेंस जो है उसकी यूनिट होती है ओम, एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एंड देन लेंथ जो होती है उसकी भी यूनिट होती है मीटर। तो इस मीटर से अगर ये मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ओम इनटू मीटर, व्हिच इज द एसआई यूनिट फॉर रेसिस्टिविटी। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट था वो था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर और रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर वायर डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, एंड देन इसका फॉर्मूला जो आता है वो R इक्वल टू रो L अपॉन A और रो इक्वल टू R इनटू A अपॉन L आता है, एंड ऐसा यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी यू कैन से दिस कम्स द ओम इनटू मीटर। ओके, अब बात ये आती है कि इसके बाद में जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था आपका सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। सिस्टम ऑफ रजिस्टर के अंदर हमने जो है वो दो चीजें पढ़ी थी, जिसमें एक था आपका कि सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, इसमें आपने जो पढ़े थे टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा कि पहला तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। So we have studied about these two topics. Now series combination, in which you have seen that more than one resistors are connected with each other by battery, then plug key, then you can say ammeter, and then voltmeter are separately connected by each resistance, because you can say that there will be the different amount of current will go through there. तो यहाँ पे इन सब का पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होगा, बिकॉज यहाँ पे R1, R2, R3 जो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है इसलिए। ओके, तो इस सर्किट को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड इसकी बात करें जिसमें हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस जो है उनको प्लस से माइनस जो है प्लस 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 एंड माइनस 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 जो उनका आपस में हम कनेक्ट करते हैं, एंड देन ये जो सर्किट है वो एक बैटरी से भी प्लस माइनस से जुड़ता है, देन प्लग की इसमें इंसर्ट की जाती है, अमीटर भी यहाँ लगाया जाता है, एंड ये जो पूरा सर्किट है जिसमें R1, R2, R3 तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ पे जो 1/R आता है वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। It is the, you can say, derivation or formula if more than one resistors are connected into the parallel combination। यानी कि एक से ज्यादा रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वहां पे उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है या जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके,
now you can see over there that if the resistors are connected into the series combination, then you can see that there will be the total equivalent resistance will come by R equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, so these all topics we have already studied, and now today I have revised about these all topics and the basic concept which we have studied in this chapter. Now the topic, or you can say next topic of this chapter, is heating effect of electrical current. So all of you know that if you have a battery like this and it is connected through a resistor wire, then you can say that electrical current I will flow through this. Okay, because we know that electrical current always flow from plus to minus. Okay, now if you want to know about the electrical charges, then you can say electrons. So electrons will always move from minus to plus. Okay, because electrons में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. Okay, so you have cleared this thing. Electrons have a negative charge and its charge will always move from, you can say that, negative to the positive. Okay, तो अब electrons जो है वो negative से positive की तरफ जाते हैं, then वहां पे जो इसकी kinetic energy होती है. Okay, ये वायर जो है इसमें से continuously अगर current flow होता है, पंखा जो होता है वो continuously चलता है, वो गर्म हो जाता है, बल्ब जो होता है वो भी आप देखते हो गर्म हो जाता है. इसी का जो कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इसको यूज करके जो है वो हम बहुत सारी घर के अंदर अप्लायंसेस होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं. यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसके अंदर और वहां पे हीट जनरेट की जाती है. ठीक है ना. दूसरा आयरन होती है, जिससे हम कपड़ों को आयरन करते हैं, तो उसमें भी वो क्या होती है, गर्म होती है, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. ओके, तो दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर विल बी द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. Okay, so the concept in which the kinetic energy of electrons converted into the heat energy is known as the heating effect of electrical current. अब बात ये आती है कि अगर आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना हो कि हीट जो जनरेट होती है वो कितनी होती है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने पावर की सप्लाई आती है. सपोज दैट यहाँ पे अगर 1000 वोल्ट की आती है या 11000 वोल्ट की आती है या 1,00,000 वोल्ट की आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम तक वो सप्लाई आती है. समझ गए. ये पंखा जो है वो कितनी देर चलता है और इसमें कितनी सप्लाई पीछे से आ रही है. इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड. So if amount of, you can say heat, how much amount of heat generated into the electrical appliances like iron and heater, so you will see that there will be the power coming from the supply. यानी कि जितनी पावर आ रही है पीछे से और जितने टाइम के लिए आ रही है, यानी एक डिवाइस जो है, एक आयरन को अपन अगर ऑन कर दी ऑफ कर देंगे तो वो क्या होगी, गर्म नहीं होगी, इतनी ज्यादा गर्म, और उसको काफी देर तक अगर आप ऑन करके रखोगे तो वो क्या देगा, बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी उसके अंदर. तो वो कितने टाइम के लिए होता है उस पर डिपेंड करता है. समझ गए. अब इसको हम फॉर्मूला होता है वो H = P × D से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि पावर जो होती है वो P = V × I होती है, यानी कि कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो और उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है वो, ये दोनों ही जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फिर जो बनता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है. अब इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट. एक होता है वोल्ट और एक होता है वोल्ट. वोल्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और वोल्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पावर. यहाँ पे H = P × T. अब P की वैल्यू अगर आप ये रखोगे तो H = क्या आ जाएगा, V × I × T. तो ये
ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, H इज इक्वल टू, तो H तो H है, V की बात करें तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I ओम्स लॉ से हमें ये पता है। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V की जगह हमने रखा I R, फिर एक I और है एंड T, तो I और I क्या हो गया, I स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R T। यहां तक क्लियर है, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला जो है उसमें क्या होता है कि आपको H इज इक्वल टू P इंटू T से P इंटू I इंटू T आ गया। अब H इज इक्वल टू क्या है, P इंटू I इंटू T, ये तो अपने को गिवन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, I की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, तो ये क्या आ जाएगा, V इंटू I की जगह हमने रख दिया V अपॉन R इंटू T। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है, नेक्स्ट वीक में हम इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो ये जहां यहाँ पे चार फॉर्मूले जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के जो बताए हुए हैं आपको, इनका जो मीन है वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओनली पावर और टाइम दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से हीट को कैलकुलेट कर सकते हो। यदि फॉर्मूले में आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल करंट और टाइम दे रखा है तो इससे कर सकते हो। यदि आपको फॉर्मूले में ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है तो इससे कर सकते हो। और यदि आपको फॉर्मूले के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दे रखा है और टाइम दे रखा है तो आप इससे कर सकते हो। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू का यूज करके और पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके और आपको जो है वो इसका कैलकुलेशन करना है। समझ गए? तो ये जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो आज हमने रिवाइज किए और ये जो नया टॉपिक है ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में अगर आपको इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है वो कल मेरे से मंडे को या नेक्स्ट वीक में जो है वो आप पूछ सकते हो। इसके अंदर जो एक टॉपिक और बचा है वो अपन नेक्स्ट वीक में करेंगे।